बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं पड़ी होगी इसको पंप और डंप करने के लिए, और ये रेगुलर टाइम इंटरवल से इसको पंप करते चले जा रहे हैं। और डंप का सवाल नहीं होता, क्योंकि सर मुझे जहां तक लगता है इसके पीछे इनका कोई ना कोई कोई एमएलएम या तो चल रहा होगा, जिसकी जानकारी कुछ ऐसे ओपनली अवेलेबल इन्होंने कुछ भी नहीं कराई है। ठीक है सर। कॉइन की ना तो वेबसाइट जेन्युइन लग रही है, ना ही ओनर्स के बारे में कुछ पता है, जैसे आपने सारी अपने रिसर्च में बताया ही है। हम्म। तो ये सारी जानकारी भी अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ साथ सर मेरे को जहां तक लगता है कोई ना कोई एमएलएम जरूर जुड़ा हुआ है, कोई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जुड़ा होगा, जिसकी जानकारी ओपनली किसी को अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो सर अगर ओपनली कुछ अवेलेबल नहीं है तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही सर, बैक एंड से कुछ ना कुछ राइट। गड़बड़ चल रहा है। तो इस तो वजह से सर ये मेरे को तो जहां तक लगता है 100% स्कैम टोकन है। so hi. Well, while I was having a look at some random coins while doing some on-chain analysis, I came across this token called Absolute Sync Token, or AST. Now, this is listed on CoinStore Exchange, which is based out of Singapore, and also in BitStorage. And I don't know about the whereabouts of this exchange. But the problem with this token is that it's not got its facts right and seems to be fishy. Or we can say, or better say, that is it a scam token? So let's have a look at its credentials one by one. Now, first, let's have a look at AST's white paper. So, for people who don't know what a white paper is, a white paper is a report or guide that informs readers about a complex issue that an organization or a group of people are working upon or solving. So, in AST's white paper, they've just gone gaga over blockchain technology and expressed their fascination over blockchain technology and no real use case. Now, the thing to note about it is that also its founders' info is wrong in the white paper and they do not exist despite putting their LinkedIn links in the white paper. The founders go by the name of Subhash Kamath, Arvind Kumar, Subhash Venkatesh, and Don Domingo, a strange name. Well, maybe it's also a hotel in Goa near Calangute Beach, or maybe they all are sipping their drinks there. Also, when I send a mail to their support team, the mail just bounced back as the support team is not in works. Now, secondly, if you look at their description in CoinMarketCap, this is what it shows. And what the hell is Balance Smart Chain? I always knew about Binance Smart Chain. Again, a description full of fascination for blockchain and technology, but no real use case. Now, let's take a look at their Twitter handle, where they have not been active since November 2023. And you can have a look at their lame post on the social media. And similar is the case for their website. Again, the same scheme of things. Well, now this coin was trading at $453 a few days back, and now it's been dumped down to $58. So no founders, no active social presence, no real use case, and no support team. But it's still listed on CoinStore and a few others. How? In fact, CoinStore and BitStorage shows high confidence in this token when I checked this out on CoinMarketCap. So CoinStore, you might want to have a deep look at this token on your exchange because this token seems to be very fishy. Okay, so as I was telling you about the AST token, now I bring in a person whose name is Banu Shakya, whom I reported with. I think he was the first person to tell me about crypto mining in Dehradun. That was in 2016. And Banu, thank you for coming in. And so I ठीक है discussed this सर। whole story about AST token with Banu. तो भानु क्या लगता है ये कि ये टोकन स्कैम है कि जेन्युइन टोकन है? बिकॉज मैंने ऑन चेन एनालिटिक्स पे स्टडी किया और उसके बाद ना तो वेबसाइट जी पे कोई टेक्नोलॉजी का कोई प्रूफ है, लाइक बिटकॉइन ऑल्सो है सातोशी जी हुज इनविजिबल, बट वी नो द रियल यूज केस ऑफ दैट डिजिटल एसेट, बट यहाँ पे तो मुझे जी कोई यूज केस ही नहीं दिख रहा है. एंड हाउ कम ही इज इट्स लिस्टेड ऑन कॉइन स्टोर? और उससे पहले मतलब आप इन सब के बारे में बताओ कि क्रिप्टो एजुकेशन क्यों जरूरी है. बिकॉज ऑफ कोर्स आई मीन we are not a anti crypto people. I mean, we ourselves have invested money into bitcoins and ethereum, but the thing is we जी just want it to be clean, right? So Bhanu, please go ahead. जी जी सर देखिए कोई भी टोकन ऐसा नहीं कह सकते कि स्कैम है क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टोकन्स हैं जो कि जेन्युइन लोगों ने भी खड़े किए हैं, जेन्युइन प्रोजेक्ट के साथ खड़े किए हैं।
और काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है और वो डंप भी हो चुके हैं। ठीक है सर। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये टोकन स्कैम है, ये टोकन स्कैम है। प्रोजेक्ट स्कैम हो सकता है सर, और जो ओनर होता है उसके थॉट, जो प्रोसेस है पूरा, जिस वजह से उसने बनाया, हम उस बंदे को स्कैम कह सकते हैं। जैसे अभी हम एएसटी की बात कर रहे हैं, जैसा आपने भी देखा, तो मैंने भी काफी थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी किया। अब मैं इसको भी काफी देख रहा था। एक सर, एक बहुत बड़ी चीज है जिसको लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक बात क्या हम्म। होती है कि एक तरीके से बहुत सारे करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस, ऐसे बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस भी हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और जिसके बारे में लोगों को नॉलेज भी नहीं है, और वो है ट्रेड ओनली टोकन का स्कैम। ठीक है सर। ओ। क्या होता या। है ये? जी हाँ, ये टोकन सिर्फ एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, ये सिर्फ बाय और सेल होते हैं, इनको आप डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर सकते सर। ठीक है सर। इसकी आड़ में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, और पर जैसा पर आपने इस जस्ट टोकन के बारे में जस्ट बताया तो। एक सेकंड, पर जी पहले ऑडियंस को बताना चाहिए कि कैसे स्कैम होता है, ये वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करो। सर, देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास बिटकॉइन है। ठीक है। बिटकॉइन बना किस लिए था? बिटकॉइन का एक सिंपल सा नाम था, पीपल्स मनी, लोगों के लिए बनाया गया था। अगर लोगों के लिए बनाया गया था, यानी लोगों के पास करंट है, आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, या फिर किसी भी एक्सचेंज में आप अपना बीटीसी डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। आपने उसे खरीदा तो आपके पास है, आप उसे कहीं पे भी ले जा सकते हो। ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पे ही पर्टिकुलर रखना पड़ेगा और आपको वहीं पे उसको बाय सेल करना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर आपके पास आपके वॉलेट की प्राइवेट की है, यानी आपके पास आपके फंड्स की सारी सिक्योरिटी है, आप जब मन चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हो, आप रख सकते हो, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके पास है, आपके हाथ में। ठीक है सर। जब तक आप अपनी प्राइवेट की किसी को हैंड ओवर नहीं करते, तब तक कोई आपका कॉइन नहीं ले जा सकता। ठीक है सर। तो ये होता है आपके पास आपके वॉलेट का होल्ड, यानी आपके फंड्स का होल्ड। अब क्या है, अब दूसरी जगह पे ये एक्सचेंजेस क्या करते हैं सर, इनके पास बहुत सारे कॉइन्स लिस्टेड है। ठीक है। इसके बीच में एक दो ऐसे कॉइन्स हैं जिनको सर आप ना तो डिपॉजिट कर सकते हो, ना विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है सर। इनको सिर्फ आप एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है सर। आपने अगर बाय कर लिया तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, या तो आप उसको हम्म। होल्ड करके रखो कि यार ये बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, मैं अपना प्रॉफिट निकाल दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई टोकन 100 रुपए के हिसाब से खरीदा हुआ, अब वो मार्केट में डंप हो रहा है, 80 रुपए आ रहा है, 60 रुपए आ रहा है, तो सर आप उसको विड्रॉ करके किसी और एक्सचेंज में जाके आर्बिट्राइज नहीं कर सकते। आपको उसी मजबूरी में उसी एक्सचेंज में आपको बेच के जाना पड़ेगा। मान लीजिए वो 60 रुपए पे आ गया, आपका 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि यार चल 40 का नुकसान है, 60 तो बचा लूं, आप उसको वहां बेच दोगे। ठीक है सर। लेकिन अगर वो टोकन डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए अवेलेबल होता और किसी और एक्सचेंज में उसका रेट थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट हो रहा होता, तो आप निकाल के कहीं और उसको ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है सर। लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको यहाँ पे बेच के ही जाना पड़ेगा। ठीक है सर। और दूसरा, ये जो जितने भी कॉइन्स होते हैं, जितने ट्रेड ओनली टोकन होते हैं सर, इसमें एक बात और नोटिस करनी चाहिए कि एक कॉइन की ना एक सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, एक मैक्सिमम टोकन सप्लाई होता है। ठीक राइट, है राइट, सर। राइट। जब एक एक्सचेंज पे ये जब ये एक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है ना सर, तो क्या होता है सर, मान लीजिए कोई एक टोकन जिसकी टोटल मैक्सिमम सप्लाई 1 लाख है। ठीक है सर। वो हमें कॉइन मार्केट कैप में दिखाई दे रहा है कि यार इसकी टोटल सप्लाई 1 लाख रुपए है, लेकिन अब वो कॉइन कुछ एक्सचेंजेस पे तो लिस्टेड है जहां पे वो बाय सेल भी हो रहा है, डिपॉजिट विड्रॉ भी हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सचेंज है जहां पे वो सिर्फ एक ट्रेड ओनली टोकन के नाम से ट्रेड हो रहा है। अब ना तो उसको डिपॉजिट कर सकते हो, ना आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ट्रू। सर आप मुझे ये एक बात बताइए, जो 1 लाख टोकन था सारा सर्कुलेटिंग में था, वो बाकी एक्सचेंजेस में है। ठीक है सर। अब आपके एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में सबसे पहले जो बाय करने के लिए या सेल करने के लिए जो क्वांटिटी आई, वो कहां से आई? क्या ट्रू। वो सर्कुलेटिंग सप्लाई का हिस्सा है? सर वो नहीं है। ये एक्सचेंज की खुद की बनाए हुए नंबर्स हैं, जिनको ये अपने अपने एक्सचेंज में ट्रेड कराते हैं सर। इनका कॉइन के एक्चुअल एग्जिस्टेंस से कोई मत लेना देना नहीं होता है। ठीक है सर। ना ही इनका उसकी कोई सर्कुलेटिंग सप्लाई से कोई लेना देना होता है। ये एडिशनल एक अपने एक्सचेंज के लिए, सप्लाई के लिए कुछ नंबर्स क्रिएट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 5,000 या 10,000, और उन्हीं 5-10 हजार को कॉइन को बाय और सेल कराते रहते हैं, जिसमें एक्सचेंज का क्या फायदा होता है सर?
क्योंकि आप जब बाय करोगे आपको तब भी फीस देनी है, जब आप उसको सेल करोगे आपको तब भी फीस देनी है। और दूसरा, ना तो इन्होंने उस करेंसी का वॉलेट अपने एक्सचेंज में इंटीग्रेट किया, तो सर इंटीग्रेशन की कॉस्ट खत्म हो गई। ना तो आपको उसको वॉलेट को सपोर्ट करना है, तो आपको ना तो उसकी सर्वर कॉस्ट देनी है, ना तो आपको उसका हॉट वॉलेट इंटीग्रेट करना है, ना तो आप ना तो आपको उसको कोई भी किसी को प्राइवेट की देनी है। आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सचेंज की फीस का मतलब है। तो एक्सचेंज सिर्फ अपनी फीस लेता है, उसके बाय सेल से या फिर उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है सर। सिर्फ मनी मेकिंग का प्रोसेस है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो राइट। इस तरीके से सर ये ट्रेड ओनली टोकन के स्कैम्स होते हैं। और या अभी मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा सर, आप भी थोड़ा देखिएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ कुछ इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह ओ से लोगों को सावधान रहना चाहिए सर। जी सर। राइट, तो जस्ट फॉर अ इससे डिस्क्लेमर लोगों को फॉर द सावधान पीपल, रहना चाहिए। just for the disclaimer, I have also worked in India's largest crypto exchange, which was WazirX. Just for the disclaimer, and you can check my proof of work because I've reported I've also worked in a crypto exchange. तो भानु ये Indian crypto exchanges में भी अभी हो रहा है because I knew this was happening it earlier when I reported with you. You know, there was a जी major pump and जी dump हाँ, जी हाँ, years. You know, 16, 17 was the major pump जी and dump years. I know how people have made money जी हाँ, जी हाँ, because I've जी हाँ, seen it happening because that time I was just जी 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 understanding how it works, right? तो क्या ये अभी भी हो रहा है जी और जी जी होता है? जी सर अभी भी हो रहा है। मैं कुछ अभी इस वीडियो में तो मैं आपको वो शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग Right. शायद लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग लाइव हैं इसमें। Right. तो अभी मैं उसको शेयर नहीं करूंगा, लेकिन पहले आप भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो सर सारे प्रूफ हैं, तो मैं वो Right. आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन आप भी देखिएगा, थोड़ी रिसर्च Right. कीजिए, आप भी खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े नाम के एक्सचेंजेस ये काम कर रहे हैं और लोगों को कोई जानकारी नहीं है। Right. Sure. I'll be happy to तो look जब at that. आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे सर। Right. तो अब इस AST टोकन के बारे में आते हैं जी सर। कि ये तो मतलब इसका कोई मेरे को रियल यूज केस दिखा नहीं है जी हाँ एंड सर। और जो तुमने जो जी बताया अभी आई थिंक इट फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी। जी जी सर। जी जी हाँ, मैं आपको यही बोलने वाला था सर। देखिए जिस तरीके के स्कैम होते हैं ना, मैंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली है, इस टोकन के बारे में या फिर ऐसे। लेकिन अगर ये कॉइन इस कैटेगरी में फॉल करता है तो सर ये वही चीज है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड ओनली टोकन है। और दूसरा सर, मैंने इसकी वॉल्यूम पे थोड़ा ध्यान दिया था, जो इसकी हम्म। डेली वॉल्यूम थी जो ट्रेड होती है। हम्म। सर देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए बिटकॉइन की वैल्यू को ऊपर नीचे करना है, ठीक है सर, इथीरियम हम्म। की वैल्यू को ऊपर नीचे करना है या टॉप 10 करेंसीज को ऊपर नीचे करना है, तो सर एक बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी हमको, जिसकी वजह से हम मार्केट को हिला पाएंगे, यानी पंप और ट्रू। डंप कर पाएंगे। लेकिन सर ये टोकन्स इतने छोटे होते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ तो आप कर नहीं सकते सर, ठीक है, तो आप कॉइन की सप्लाई नहीं ला सकते, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, ये जो टोकन के जितने भी ओनर्स होते हैं ये खुद के ट्रेडर्स को एक्सचेंज में बिठा के रखते हैं सर। एक चीज है, एक बात और आप थोड़ा ध्यान, मैं आपको थोड़ी बात बताऊंगा। जब भी आप एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को में अपना कॉइन लिस्ट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है सर, आपको कुछ एडवांटेज मिलते हैं, कुछ एडिशनल आपको अकाउंट्स मिलते हैं जिनकी ट्रेडिंग फीस जीरो होती है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रलाइज होते हैं सर, ठीक है। राइट। क्योंकि मैंने भी सर काफी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में काम किया हुआ है, तो मैं जानता हूँ ये कैसे डेवलप होते हैं और किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनकी ट्रेडिंग फीस जीरो होती है। जैसे आपके और मेरे ट्रेडिंग जो भी अकाउंट होगा फीस होगी उसकी 0.02 के आसपास की ट्रेडिंग फीस होगी बाय और सेल पे, ये आपको मालूम होगा। और एक लेवल क्रॉस करने के बाद ये फीस कम होती चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इसमें अकाउंट अपना आराम से ले सकते हैं, क्योंकि सर टोकन लिस्टिंग का भी फंडा आपको मालूम होगा। टोकन लिस्टिंग के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती है, बस पैसा चाहिए होता है। आप पैसा फेंको, आपका कॉइन एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, ठीक है ट्रू। सर। तो लिस्टिंग कराने के बाद कुछ नहीं होता है सर, बस ये सिंपल से अपने 3-4 ट्रेडर्स को बाय सेल में बिठाते हैं और अपने कॉइन की वॉल्यूम को पंप और डंप करते हैं। जैसे मैंने बताया, बिटकॉइन की वॉल्यूम को पंप डंप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन इस तरीके के छोटे मोटे कॉइन्स जिनकी एक्चुअल वैल्यू बहुत कम है, उनकी सप्लाई पे आपका कंट्रोल है और उसकी डिमांड पे भी आपका कंट्रोल है, बाय सेल ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसको आप बहुत ही छोटे अमाउंट से, आप मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख या 20 लाख रुपए के अमाउंट से भी पंप डंप कर सकते हैं। और जो मैंने वॉल्यूम देखी है सर, वॉल्यूम के हिसाब से, जो डेली ट्रेडिंग के हिसाब से, इस टोकन को ज्यादा पंप और डंप करने के लिए इनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और ज्यादा वॉल्यूम के, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ी कि इसको
पंप और डंप कराने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़े, करोड़ों रुपया लगाना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं लगाना पड़े, डेली 24 आवर वॉल्यूम आपको कॉइन मार्केट कैप में भी मिल जाएगी कि 24/7 किस हिसाब से और कितनी वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड होता है। ज्यादा से ज्यादा सर इसमें शायद $2,000 या $3,000 के आसपास का ही ट्रेड मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मैंने देखा है। और बाकी अगर थोड़ा ऊपर नीचे कहीं होगा, मैंने मिस आउट कर दिया होगा तो कर दिया होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं पड़ी होगी इसको पंप और डंप करने के लिए। और ये रेगुलर टाइम इंटरवल से इसको पंप करते चले जा रहे हैं। और डंप का सवाल नहीं होता, क्योंकि सर मुझे जहां तक लगता है इसके पीछे इनका कोई ना कोई कोई एमएलएम या तो चल रहा होगा, जिसकी जानकारी कुछ ऐसे ओपनली अवेलेबल इन्होंने कुछ भी नहीं कराई है। ठीक है सर। कॉइन की ना तो वेबसाइट जेन्युइन लग रही है, ना ही ओनर्स के बारे में कुछ पता है, जैसे आपने सारी अपने रिसर्च में बताया ही है। हम्म। तो ये सारी जानकारी भी अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ साथ सर मेरे को जहां तक लगता है कोई ना कोई एमएलएम जरूर जुड़ा हुआ है, कोई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जुड़ा होगा, जिसकी जानकारी ओपनली किसी को अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो सर अगर ओपनली कुछ अवेलेबल नहीं है तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही सर, बैक एंड से कुछ ना कुछ राइट। गड़बड़ चल रहा है। तो इस तो वजह से सर ये मेरे को तो जहां तक लगता है 100% स्कैम टोकन है। तो कॉइन स्टोर जैसी एक्सचेंज को और जो दो तीन एक्सचेंज और जहाँ लिस्टेड है उनको जी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी वहाँ लिस्टेड है एंड पीपल आर स्टिल ट्रेडिंग। सर देखिए, इसको करना तो चाहिए, क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है सर अभी इसका मैक्सिमम प्राइस शायद मैंने ध्यान नहीं दिया है कितना गया हुआ है। आई थिंक इट तो वेंट अप अभी टू समवेयर मैक्सिमम प्राइस अराउंड भी काफी आ फोर रही है, एटी शायद सिक्स 600। फोर हाँ 486 और 500 समथिंग विच आई हाँ, लास्ट चेक एंड इट वी सॉ द पाँच प्राइस सौ इट वाज डॉलर के लाइक एट। आसपास जा चुका है। हाँ, और फिर ये अचानक से 2 दिन में हाँ उसके सर, बाद मतलब $11 एकदम पे था। हवा में गया। फिर सर $4 एकदम एंड से, देन और इट अभी अगेन शायद वेंट चार लाइक डॉलर हाँ के आसपास ट्रेड हो रहा है। या हाँ, 4 से 6 गया, अब दोबारा आज की डेट में भी शायद $4 पे है। तो सर किसी भी कॉइन को इतना बड़ा ड्रॉप मैंने तो गिरते हुए इतना जल्दी देखा नहीं। अगर पंप होता है तो सर धीरे धीरे पंप होता है। या और क्या होता है सर, अगर किसी को डंप करना है तो ये सही तरीका होता है इसको डंप करने का, धीरे धीरे इसको पंप कराओ और डंप करा दो। बाकी कुछ कॉइन्स आपने देखे होंगे जो इकट्ठे एकदम पंप होते हैं, डंप हो जाते हैं। ठीक है सर, हम्म। वो एक अलग तरीके का स्कैम है। अगर आपका और मेरा डिस्कशन हुआ तो होपफुली मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा ट्रू। कि पंप और डंप ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो डेली करोड़ों रुपए लेके बैठते हैं और 10 सेकंड्स के लिए या करीब 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए कॉइन को पंप करते हैं और डंप करते हैं। तो ट्रू। ऐसा भी बहुत तरीके से होते हैं सर, ये भी चल रहा है। ये इस तरीके के स्कैम्स भी चल रहे हैं। तो इस कॉइन के साथ जो जहां तक मुझे लगता है सर, ये जितना भी पैसा इकट्ठा करना था ओनर ने वो पैसा अपनी जेब में कर लिया है और अपने कॉइन को डंप करके ये निकल लिया है। अब अगर इसको ढूंढने भी जाओगे तो शायद सर शायद ही ये आदमी आपको कहीं मिलेगा। राइट। Okay. So viewers, this is how I mean probably he's just given us a case study for how these scam tokens kind of delve into this crypto ecosystem, and I think we all want the crypto ecosystem to be healthy and much more compliant. Now, CoinStore needs to introspect about this token, which is AST, as to what it is, because as far as what we researched about it, it's not got its facts right. So, CoinStore, you must kind of introspect this token, and people should be aware about what they're investing into. Because at the end, nobody is coming when you lose money. That's the hard fact. जी सर। Right, Bhanu, thank you. And I think hopefully now with this, I think we'll continue a series of videos because I really wanted people to get educated. And who better than you? Because you've been through all the processes so far as what I know. And yeah, there was a time when I didn't knew crypto. And yeah, and I interacted with you. And today I'm doing these podcasts. I've worked in a crypto exchange. I've reported, made a documentary. So yeah, so I owe my thank you to you, kind of because you made me aware about it then, and because I was wondering about those mining machines which I saw it at your home, right? I still remember जी those हाँ सर। Bitcoin mining. अब तो मैं जानता भी हूँ कि एसिक माइनर क्या होता है। उस टाइम पे आई टोल्ड यू कि ये तो बिल्कुल जी बेकार जी है, जी। नहीं चलेगा। मैंने आपके घर पे ही ये कहा था। So yeah, let's see where जी we are जी headed towards with this crypto ecosystem. I think it should be healthy and compliant, much more compliant enough. And till then, thanks Banu for joining me, and I end my video here. जी Thank you so much. जी। थैंक यू।